So hello everyone. We will be starting with today with the new chapter, that is simple lifting machine. So students, when a word machine comes to your mind, what does first thing hits in your brain? What is a machine? We can say a machine which reduces human effort, right? For example, we can say any sort of vehicle, right? It is also a machine. चल के जाना पड़ता है, तो वो कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, कार का इन्वेंशन किया, बाइक्स का इन्वेंशन किया, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज अ मशीन? अ मशीन इज अ डिवाइस, ओके, विच यूटिलाइजेस द अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क. आई विल रिपीट इट अगेन. अ मशीन is a device which utilizes the available energy for doing some productive work. Okay. Further on, machines are classified in two types. One is the simple machine and one is the compound machine. Is that clear? So first write down the definition of simple machine. Normal machine. A machine. What is a machine? So a machine is a device, you can write with me. A machine is a device. A machine is a device, students, which utilizes the available energy, which utilizes the available energy for doing some productive or useful work. सो यहाँ से हमें फंडामेंटल्स मशीन्स के क्लियर हो गए. ओके, जो एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है उसको यूज करके जो भी मैं यूज करूंगा, जो भी वर्क परफॉर्म करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? मशीन बोलूंगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल विंड मिल कंसिडर करो. विंड मिल क्या है? विंड आ रही है, अवेलेबल एनर्जी है, विंड एनर्जी है हमारे पास. वो क्या कर रहा है? विंड मिल रोटेट होके यूजफुल वर्क परफॉर्म कर रहा है बाय जनरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो मशीन इज अ डिवाइस विच यूटिलाइजेस द अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग सम प्रोडक्टिव और यूजफुल वर्क. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी डेफिनेशन आई व्हाट इज अ मशीन? मशीन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर machine is a device which utilizes the available work for doing some productive or useful work. Is that clear? Now students, machines are classified broadly into two types, majorly two types. One is the simple machine and second one is the compound machine. One is simple machine and second one is the compound machine. So basically what is a simple machine? Simple machine क्या होगा? Basically it is a device which is used to lift a heavy load by applying comparatively lesser force on the another end. मतलब एक एंड पे हम लोग को क्या है? हैवी लोड होगा, राइट, जिसको हमें लिफ्ट करना है. ये एक पॉइंट पे होगा और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? हम लोग एफर्ट लगाएंगे जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल होगा. देखो दोनों भी फोर्स ही है, एक तरफ ज्यादा फोर्स है, एक तरफ कम फोर्स है. जो लोड होगा वो ज्यादा होगा और जो एफर्ट हम लगाएंगे वो लोड को लिफ्ट करने के लिए वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा. सब केसेस में नहीं एप्लीकेबल है, बट मेजरली केसेस 90% ऑफ द केसेस में यही होता है कि लोड ज्यादा होता है और लोड को लिफ्ट करने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वेल में बकेट अगर हम लोग डालते हैं पानी बाहर निकालने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एक पुली यूज करते हैं, राइट, जिसके ऊपर से हम वो रोप को लेके जाते हैं. तो जब हम कम फोर्स लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई लेस फोर्स, heavy bucket lifts up with that pulley.
so it is also a machine, it is a simple machine. Is that clear? So simple machine क्या होता है? You can write the definition. Is it visible there? So हाँ, yeah. So यहाँ पे तुम simple machine लिखोगे. So a device which is used for lifting, a device which is used for lifting heavy load which we indicate as W, heavy load, a device which is used for lifting a heavy load at one point by applying comparatively smaller force on the other end, by applying a smaller force जिसको हम लोग इसको बोलते हैं effort, which is denoted by P. Okay, comparatively applying a smaller force which is known as effort on the other end is known as simple machine और simple lifting machine. Machine का short form क्या है? M/C. So students, what is a simple machine? A device which is used for lifting a heavy object. A device which is used for lifting a heavy object at one point, which is indicated by a letter W, by applying comparatively a smaller force, which is indicated by effort, which is indicated by P. On the other end, it is known as the simple machine. Is that clear? So एक ऐसा डिवाइस जो कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेगा, कंपैरेटिवली स्मॉल फोर्स लगेगा वो हैवियर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन बोलेंगे या फिर सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे. एग्जाम्पल पुली याद रखना, ठीक है? जब हम पानी वेल से निकाल रहे हैं, अगर पुली नहीं होता तो उतना ही फोर्स हमको निकालना पड़ता या उससे ज़्यादा लगता, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो व्हेन वी आर वर्किंग against the gravity we will be requiring more force, because gravitational already acceleration जो लग रहा है gravity की वजह से, that is 9.81, जो कि roughly approximate 10 हम consider कर सकते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है स्टूडेंट्स. Is that clear? So what is a compound machine? A compound machine is nothing but a combination. It is the combination of simple machine. मतलब दो सिंपल मशीन को अगर हम जोड़ देंगे, 2 से 3 मिनिमम मशीन को हम जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड मशीन बन जाएगा. इज दैट क्लियर? काम वही है ना, खाली पर्पस अलग अलग है. समझे क्या? इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म्स देखने वाले हैं कि मशीन्स के कौन से टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है जो कि हमें यूज़ होंगे कैलकुलेशंस के लिए फॉर सॉल्विंग द वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स. व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स? ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स इज द theoretical study of the topics which we are going to study and the application of that theoretical topics when we come to on numerical basis. Okay students, so now we will be looking over the terms which will be used in terminologies which will be using in solving the numericals. What is load? Load is nothing but the resistance to be overcome, or we can say the load to be lifted is known as
or we can say the weight to be lifted is known as the load. Is that clear? The resistance to be overcome by any machine, or we can say in some simple terms, the weight to be lifted is known as the load. It is known as the load. Okay, the weight to be lifted is known as load. It is denoted by capital W. It is denoted by what? Capital W. It is denoted by capital W. The resistance to be overcome by any machine, और we can say the weight to be lifted. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मुझे लिफ्ट करना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लोड बोलूंगा. उसको मैं क्या बोलूंगा? लोड बोलूंगा. जो सेकेंड टर्म स्टूडेंट जो मेरे पास है दैट इज नथिंग बट एफर्ट. जो सेकेंड टर्म मेरे पास है वो क्या है? एफर्ट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? पी से डिनोट करता हूं. जिसको मैं क्या करता हूं? किससे डिनोट करता हूं? पी से डिनोट करता हूं. तो अभी अगर लोड क्या है? वेट टू बी लिफ्टेड है. ओके, सो एफर्ट का काम क्या करेगा? एफर्ट का काम है मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो वेट लिफ्ट करने के लिए. इज दैट क्लियर? अगर लोड W है तो वो W को लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफर्ट बोलेंगे. उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एफर्ट बोलेंगे. सो द फोर्स, वी कैन से द फोर्स required to lift the load is known as effort. It is denoted by P, capital P. The force required to lift the load, it is known as effort. इज दैट क्लियर? ये दो टर्म्स में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. ओके, सो होप सो तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा. ओके, लोड मतलब क्या है? ऐसा जो ऑब्जेक्ट जिसको हमें उठाना है, जिसको हमें लिफ्ट करना है. एंड व्हाट इज एफर्ट? अभी वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मैं बोलूंगा एफर्ट. इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट. उसके बाद हम लोग देखेंगे, पॉज करके नोट करो. उसके बाद हम लोग एक टर्म देखेंगे दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज का नोटेशन है m.a. व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एफर्ट. Mathematically it can be represented as W upon P. So mechanical advantage क्या है? It is the ratio of load per unit effort or ratio of load to effort. So mechanical advantage is represented by which is nothing but load upon effort, or we can say mechanical advantage is equal to W upon P. अभी स्टूडेंट जो लोड होता है ना उसका यूनिट न्यूटन में होता है या किलो न्यूटन में, कुछ भी कंसीडर कर लो तुम लोग. और जो एफर्ट होता है वो भी न्यूटन में होता है कि वह किलो न्यूटन में होता है. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो अगर लोड का यूनिट न्यूटन में है, ओके, अगर लोड का यूनिट न्यूटन में है एंड एफर्ट का यूनिट भी न्यूटन में है, सो न्यूटन अपॉन न्यूटन विल बी कैंसल आउट. सो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट. मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट बिकॉज लोड का यूनिट भी न्यूटन है अपॉन एफर्ट का यूनिट भी न्यूटन है. सो बोथ ऑफ देम विल बी डायरेक्टली कैंसल आउट. इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? सो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, सॉरी, लोड अपॉन एफर्ट.
लोड अपॉन एफर्ट। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म देखेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है, नीचे दिख रहा है क्या? यस, इट इज विजिबल। नेक्स्ट जो टर्म है वो कौन सा टर्म है? दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो which is denoted by v dot r. So student, what is velocity ratio? Velocity ratio is nothing but the ratio of distance moved by the effort per unit or upon distance moved by the load. We can say velocity ratio is the ratio of distance moved by effort upon distance moved by load. Okay, it is denoted as velocity ratio will be equal to, if distance moved by an effort is denoted by y and small y, and distance moved by the load is denoted by small x. मतलब एफर्ट के लिए मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है उसको मैं y बोलूंगा, और लोड के लिए मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है उसको मैं x बोलूंगा। सो इज दैट क्लियर? वेलोसिटी रेशियो is nothing but the ratio of distance moved by an effort per unit or upon distance moved by the load. So it is nothing but y by x. So it has also no unit because distance will be in meter or mm, और इसका भी distance will be in meter or mm gets cancel out, so it has no unit. It has no unit. So velocity ratio को भी क्या है? यूनिट नहीं है। velocity ratio को भी क्या है? यूनिट नहीं है। velocity ratio को भी क्या है? यूनिट नहीं है। So students, let's start with the new topic, or we can say the new concepts, new terms। टॉपिक नहीं यार, क्या बोल रहा हूं मैं भी, न्यू टर्म्स। So students, write down input of a machine. What is input? What is input? जब मेरे मन में जब आता है what is input? Input मतलब क्या? कोई भी चीज हम देते हैं उसको क्या बोलेंगे? Input बोलेंगे। So what is input? It is the product of effort. It is the product of what? It is the product of effort and distance moved by effort. What is input? It is the product of effort and distance moved by an effort. Okay, so what is input? Input का फॉर्मूला क्या होगा? Which is equal to product of effort, it is P, into distance moved by an effort, that is equal to Y. This is known as मेरा what? Input. So input is nothing but the product of effort and distance moved by an effort. Okay. So next student जो मेरा टर्म होगा वो क्या होगा? इनपुट आया तो क्या आएगा बाद में? आउटपुट आएगा। इनपुट आया तो क्या आया? आउटपुट आएगा। So what is output? So students, output is nothing but it is a product of, it is the product of load, which is nothing but W, and distance moved by the load, and distance moved by load. So what is output? It is the product of load and distance moved by the load. So what is the formula for output? आउटपुट का फॉर्मूला होगा लोड और प्रोडक्ट का जो भी डिस्टेंस मूव हो रहा है वो। सो W इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स इज नथिंग बट आउटपुट।
So what is input? Input is nothing but P into Y, and output is nothing but W into X. Is that clear? So now students, we will be learning, we will be going through what is efficiency of machine. What is efficiency of machine? This is the one of the important term in every numerical of simple lifting machine, or we can say the numerical you will be facing. You will be set to calculate the efficiency of the machine. So student, what is the efficiency of the machine? It is nothing but it is the ratio of output to input. It is a ratio of output to input. Efficiency is always expressed in terms of percentage and it is denoted by eta, जो कि n के जैसा होगा, तो n का ये जो होगा डंडी होगा, तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेने का. इट इज नोन एज एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी इज नोन एज आउटपुट अपॉन इनपुट. एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट. परसेंटेज में सो इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आ जाएगा परसेंट में. इज दैट क्लियर? सो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. इज दैट क्लियर? देखो, कभी भी स्टूडेंट्स याद रखना, एफिशिएंसी होगा ये कभी 100 से बड़ा नहीं होगा या कभी 100 नहीं होगा. बिकॉज कोई भी अगर मशीन हम कंसिडर करते हैं तो मशीन में क्या होता है, लॉसेस होते हैं. तो जितना हम पेट्रोल अगर व्हीकल में डालते हैं तो उतना एवरेज हमें व्हीकल का मिलता नहीं है. कंपनी अगर 60 का क्लेम कर रही है तो टोटल 60 का हमें मिलता नहीं है. तो उसके जो भी अराउंड वैल्यू रहेगा उससे कम ही मिलेगा हमें. बिकॉज नो मशीन इज 100% एफिशिएंट. देयर विल बी ऑलवेज लॉसेस इन द मशीन. अगर वो मशीन 100% है तो दैट इज, जिसकी एफिशिएंसी 100% है, दैट मशीन इज नथिंग बट द आइडियल मशीन. दैट विल बी द आइडियल कंसेप्ट. देयर विल बी द लॉसेस. हमेशा याद रखना. सो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगा. कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देख लेना, राइट. सो आउटपुट जो है वो कभी भी छोटा रहेगा कंपैरेटिवली इनपुट. अगर हम लोग देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट में जो आउटपुट रहेगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा इनपुट के कंपैरिजन में. इज दैट क्लियर? सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. So student, let's start with the relation between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. What is the relation? So we will be putting the heading, that is, अरे यार मैंने यही रफ कर दिया. That is chapter number 2, simple lifting machine. दिख रहा है क्या ये ऊपर? क्या गायब हो गया? नहीं दिख रहा है. सो स्टूडेंट्स, वी विल बी सीइंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, दैट इज वी विल बी सीइंग द टॉपिक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. सो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या रहता है? लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज इक्वल टू W अपॉन P. वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय अ लोड, दैट इज Y बाय X. और यहां से हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट इज इक्वल टू W इंटू X एंड इनपुट इज इक्वल टू P इंटू Y. राइट. सो अभी देखना रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. सो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट जो होता है, आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W इंटू एक्स.
आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इंटू एक्स, और इनपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू वाई। क्या होता है, P इंटू वाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, आउटपुट और इनपुट। अगर इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो स्टूडेंट तुमको पता रहेगा, अगर A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी रहेगा तो D किसके पास जाता है, A के पास जाता है, और C किसके पास जाता है, B के पास जाता है। C किसके पास जाता है, B के पास जाता है। सो इसमें अगर हम लोग देखेंगे W अपॉन P ऊपर भागेगा एंड X अपॉन Y अपॉन X करेंगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, W इंटू एक्स एंड P इंटू वाई। समझे क्या? यहाँ पे देखो A अपॉन बी होल C अपॉन डी अगर रहेगा सो D किसके साथ जाता है, A के साथ जाता है, C किसके साथ जाता है, B के साथ जाता है। सिमिलरली अगर W अपॉन P होल Y अपॉन X रहेगा सो X W के साथ जाएगा, मतलब यही एक्सप्रेशन हमें आएगा, Y P के साथ जाएगा तो यही एक्सप्रेशन आएगा। इज दैट क्लियर? अभी स्टूडेंट्स हमको पता है, क्या पता है कि W अपॉन P जो होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, एंड Y अपॉन X जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। सो यहाँ से मुझे आता है एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये दिख रहा है क्या? So efficiency of the machine is nothing but the mechanical advantage upon velocity ratio into 100. Mechanical advantage upon velocity ratio multiply by 100. ये समझ गया ना? आउटपुट इज इक्वल टू W इंटू एक्स, इनपुट इज इक्वल टू P इंटू वाई। अगर हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है A अपॉन बी होल C अपॉन डी अगर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। सिमिलरली मेरे पास भी यही था तो मैंने क्या किया, W अपॉन P इंटू वाई अपॉन एक्स कर दिया। सो एक्स किसके पास जाएगा, W पे पास जाएगा, मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगा। वाई किसके पास जाएगा, P के पास जाएगा, तो मुझे वही वैल्यू आने वाला है। समझे ना? बस ऊपर नीचे कर लिया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल है। सीधा एग्जाम में वैल्यूज याद करनी है, वैल्यूज मतलब फॉर्मूलाज याद करने हैं, वैल्यूज तो देंगे, फॉर्मूलाज याद करने हैं, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। कैल्सी चाहिए अपने पास अच्छा वाला जो वैल्यूज निकाल के दे, और बस फॉर्मूला चाहिए। इजीली 4 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे। ठीक है, नोट कर ले भाई, फटाफट कर लो नोट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल, राइट? तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन अ लोड ऑफ 1400 न्यूटन is lifted by an effort of 50 Newton. While load moves by 0.2 meter, the point of application of effort moves by 6 meters. Okay? अभी देखो एग्जाम में तुम्हें कैल्सी यूज कर सकते हो तुम, राइट? तो ये सब चीजें तुम कैल्सी में ही निकालोगे। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब फॉर्मूलेज आने चाहिए। सो जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। तो स्टूडेंट सबसे सोल्यूशन से पहले हम लोग पहले एक बार गिवन डेटा लिख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन डेटा, एक बार देखते हैं क्या चीजें गिवन दी है वो हमें लिख लेते हैं पहले, राइट? सो गिवन क्या है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन अ लोड ऑफ 1400 न्यूटन। लोड कभी भी बड़ा होता है, मैंने जैसे बोला था वही है, 1400 न्यूटन का क्या है, लोड है, राइट? उसके बाद जो एफर्ट है वो कितना है स्टूडेंट, 50 न्यूटन है। डिस्टेंस वाइल द लोड मूव्स बाय 0.2 मीटर, जो लोड है मतलब x की वैल्यू है वो 0.2 मीटर्स है, एंड जो y है दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट है वो कितना है, 6 मीटर है। अभी ये चीज के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट? सो अभी देखो इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा। सोल्यूशन में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा उसका फॉर्मूला क्या है, W अपॉन P। अभी W है दैट इज नथिंग बट द लोड, लोड का वैल्यू कितना है 1400, सो 1400 डिवाइडेड बाय 50। इज दैट क्लियर? तुम्हें ये वैल्यू डायरेक्ट कैल्सी में डाल सकते हो, W अपॉन P दैट इज 1400 डिवाइड बाय 50। सो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
ओके 4 बच गया, 5 8 जा 40। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो आया वो कितना आया, 28 का है। सिंस मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट नहीं होता, इसको भी यूनिट नहीं है, सो फर्स्ट जो वैल्यू थी मैकेनिकल एडवांटेज की हम लोग ने निकाल ली स्टूडेंट्स। W अपॉन P, W कितना दिया 1400, P कितना दिया है 50 न्यूटन। सो निकाल लिया, फर्स्ट निकाल लिया। सेकेंड जो है स्टूडेंट वो क्या है, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी रेशियो। अभी वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y अपॉन एक्स से, क्या है y अपॉन एक्स। y की वैल्यू कितनी है 6 मीटर्स एंड x की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर्स। अभी इसको सिंपली पॉइंट का है, तुम कैल्सी में डालोगे, ये कैल्सी तुम यूज कर सकते हो एग्जाम में, राइट। तो ये वैल्यू तुम डालोगे तो आंसर तुम्हें आ जाएगा। यू कैन यूज कैल्सी या फिर नहीं यूज करना है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 2, राइट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। सो वेलोसिटी रेशियो स्टूडेंट्स कितना आया 30 आया। वेलोसिटी रेशियो कितना आया 30 आया। इज दैट क्लियर। अभी नेक्स्ट जो टर्म आएगा आखिरी वाला, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। दिख रहा है क्या वहां पे, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो एफिशिएंसी यहाँ पे करता हूं, एफिशिएंसी इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 28 आया, जो कि बोला है कि छोटा होगा। वेलोसिटी रेशियो कितना आया 30 आया, जो कि मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो जो एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स, कैल्सी में वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज नथिंग बट 28 डिवाइड बाय, देखो कैसे करना है, ये यहाँ पे अपॉन वाला है, इसके ऊपर तुम क्लिक करो, 28 डिवाइड बाय 30, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना और बाद में ये HD दबा देना। सो एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज नथिंग बट 93.33%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। सो स्टूडेंट्स बहुत ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स है इसमें। सो जो तुम्हारे पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद तुम्हें आएंगे कि व्हाट इज we can say reversible and irreversible machine, what is the law of machine, different kind of mechanisms आएगा, worm and worm wheel आएगा, screw jack आएगा, okay, so please take a note of it.